إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المنزل إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقال نبينا مكرم صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله الإمام العادل وشاب نشا بعبادة الله ورجل قلبه معلق في المساجد ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. تمام قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی و بزرگی، تنہائی و اکتائی، خلوت و جلوت، وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق اور سزاوار ہے۔ کروڑہ کروڑ درود و سلام نازل ہو آخری نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حاضرین جمعہ، پیوستہ جمعہ کے اندر آپ کو بتلایا گیا تھا کہ 7 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ رب العالمین اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دے گا۔ جس دن اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں ہوگا، جس میں 2 لوگوں کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا گیا تھا، 5 لوگوں کا تذکرہ باقی ہے، انہی کا تذکرہ آج آپ کے سامنے کرنا ہے۔ تیسرا شخص جس کو اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے تلے جگہ ملے گی، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، وہ ایسا آدمی ہے جس کا دل مسجدوں سے لٹکا ہوا ہوتا ہے، جو مسجدوں سے محبت کرتا ہے، مسجدوں کو آباد کرنے کی کوششیں کرتا ہے، مسجدوں کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، اپنا آواجاہی کا زیادہ وقت مسجدوں میں لگاتا ہے، ایسے انسان کو اللہ رب العالمین اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دے گا۔ اور ایسے لوگوں کی
جو اپنا تعلق مسجدوں سے رکھتے ہیں، جو مسجدوں میں آتے ہیں، فرائض کی ادائیگی کرتے ہیں، سنن کی ادائیگی کرتے ہیں، نوافل کی ادائیگی کرتے ہیں، ایسے لوگوں کی ایمان کی گواہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی تعریف کرتے ہوئے فرماتا ہے انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، اللہ رب العالمین کے گھروں کو آباد کرنا، اللہ رب العالمین کے گھروں کو رونقیں پرووائڈ کرنا، یہ ان لوگوں کا کام ہے جو اللہ رب العالمین پر ایمان رکھتے ہیں۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، نماز کی ادائیگی کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور ایسے لوگوں کی ایک خاص خصوصیت اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ، جو لوگ مساجد سے اپنا تعلق رکھتے ہیں، جو لوگ مساجد سے اپنا رابطہ رکھتے ہیں، جو لوگ مساجد میں آ کر کے نماز ادا کرتے ہیں، جو لوگ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی خصوصیت بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ، ایسے لوگ صرف اور صرف اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے، کسی کے سامنے نہیں جھکتے، کسی کی جی حضوری نہیں کرتے۔ فَأَسَى أُولَٰئِكَ مِنَ الْمُهْتَدِينَ، اس کے بعد اللہ فرماتا ہے کہ امید ہے کہ یہی لوگ کامیاب و کامران ہیں، ہدایت یافتہ ہیں، جن کا تعلق مسجدوں سے ہوتا ہے، جو مسجدوں کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، ایک حدیث کے اندر ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ مسجدوں سے اپنا تعلق رکھتے ہیں، مسجدوں میں آتے ہیں، ایسے لوگ اللہ رب العالمین کا مہمان ہوتے ہیں۔ پیارے رسول فرماتے ہیں من توضأ وجاء إلى المسجد فهو زائر اللہ، کہ جو آدمی وضو کر کے مسجد کو آتا ہے وہ آدمی اللہ کا مہمان ہوتا ہے۔ وحق علی المزور ان یکرم الزائر، میزبان پر یعنی اللہ رب العالمین پر یہ حق ہے کہ وہ اپنے مہمان کی میزبانی کرے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، جب ہمارے گھر میں کوئی مہمان آتا ہے تو ہماری پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اپنے مہمان کی عزت کریں، اپنے مہمان کی تکریم کریں۔ بسا اوقات ہم اپنے مہمان کو خوش کرنے کے لیے طرح طرح کے تکلفات کرتے ہیں، اس کی آرزوؤں اور تمناؤں کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب ہم مہمان کے لیے اتنی عزت کرتے ہیں جبکہ ہمارے پاس بہت ساری چیزیں نہیں ہیں، ہم محتاج ہیں، ہم بے بس ہیں، تو اس اللہ رب العالمین کا معاملہ کیا ہوگا جس اللہ کے در کے بھکاری ہیں ہم لوگ؟ جب اس اللہ کا ہم مہمان بن کر کے مسجد کے اندر آئیں گے، میرے بھائی اور دوستو، وہ اللہ ہمیں خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا، وہ اللہ ہماری عزت کرے گا، وہ اللہ ہماری تمناؤں کو پورا کرے گا، وہ اللہ ہماری آرزوؤں کو پورا کرے گا، وہ اللہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اپنا رب کو مسجدوں سے رکھے اور گھروں سے وضو کر کے مسجد کی طرف آئے۔ قیامت کے دن جب چاروں طرف اندھیرا چھا جائے گا، جو لوگ مساجد سے اپنا ربط رکھتے ہیں، مساجد سے اپنا تعلق رکھتے ہیں، پیارے نبی فرماتے ہیں ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین قیامت کے دن مکمل نور عطا کرے گا۔ پیارے نبی فرماتے ہیں بشر المشائین فی الظلم الی المساجد بالنور التام یوم القیامہ، کہ اندھیروں میں، رات کی تاریکیوں میں، برسات کے کیچڑوں میں جو لوگ چل کر کے اللہ کے گھر کی طرف آتے ہیں، مسجدوں میں آتے ہیں، اے نبی ایسے لوگوں کو خوشخبری سنا دیجئے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کو مکمل طور سے نور عطا کرے گا، مکمل طور سے روشنی عطا کرے گا۔ میرے بھائیوں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن ہمیں روشنی ملے، قیامت کے دن ہمیں اللہ رب العالمین کے عرش کا سایہ نصیب ہو، تو ایسی صورت میں ہمارے لیے اور آپ کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنا ربط، اپنا تعلق مسجدوں سے جوڑیں۔ آج حالات تو ایسے ہیں، بچوں کو چھوڑ دیجئے، نوجوانوں کو چھوڑ دیجئے، ان کھوسٹ بڈھوں کی بات کر لیتے ہیں جن کے بال سفید ہو چکے ہیں، جن کے جسم کے گوشت چچک گئے ہیں، بالکل چشے ہوئے آم کی طرح سے جن کا جسم ہو چکا ہے، جن کا ایک پیر قبر کے اندر جا پہنچا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، ہمارے معاشرے اور سماج کے اندر ایسے ہزاروں بڈھے رہتے ہیں جن کا تعلق مسجد سے نہیں ہوتا ہے، عمر کے آخری مرحلے میں ہے، کب ان کا ٹکٹ کٹ جائے،
कब उनकी जिंदगी का शाम हो जाए कोई गारंटी नहीं। अल्लाह ने उनको नोटिस दे दिया है, उनके सर के बाल पक चुके हैं, उनके जिस्म ये बतला रहे हैं, उनके जिस्म ज़बाने हाल से ये कह रहे हैं क्या नादान सुधर जा, तेरे ऊपर बुढ़ापा आ गया है। बुढ़ापे के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन जिंदगी के अंदर कोई और मरहला नहीं रखा है। आदमी बूढ़ा हुआ, बूढ़ा होने के बाद सिर्फ और सिर्फ उसके पास एक ऑप्शन है कि उसको बस कब्र के हवाले करना है, उसको कब्र के अंदर जाना है, बस इतना ही। लेकिन मेरे भाई और दोस्तों, बहुत तकलीफ होती है और बहुत अफसोस होता है जब अर्ज़ले उम्र को पहुंचे हुए लोग, 65 बुढ़े जिनकी उम्र का कोई सहारा नहीं, जब उनका ताल्लुक मस्जिद से नहीं होता, जब वो मस्जिदों को नहीं आते, बाहर खेलते कूदते हैं, इधर उधर बैठ करके मदरगश्ती करते हैं, गपशप करते हैं, अल्लाह के घर से अपना रिश्ता नहीं तोड़ते, ऐसे लोगों पर बड़ा अफसोस होता है और ऐसे लोगों पर दुख आता है कि अल्लाह न जाने कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे लोगों के साथ क्या करेगा। ऐसे लोगों को चाहिए कि वो सिर्फ और सिर्फ अपना ताल्लुक मस्जिदों से जोड़े, वो मस्जिदों को आए। देखा यह गया है कि जिनकी उम्र हो चुकी है, मुअम्मर हजरात पैर के दर्द के साथ होटलों तक पहुंच जाते हैं, पैर के दर्द के साथ दरख्तों के नीचे बैठकर मीटिंगें करते हैं, पैर के दर्द के साथ एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो जाते हैं। लेकिन ऐसे लोगों को तौफीक नहीं मिलती है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के घर से रास्ता रख ले। ऐसे लोगों को तौफीक नहीं मिलती है कि वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के घर के अंदर आ जाए। मेरे भाई और दोस्तों, ये तो अक्सरियत की बात मैं कर रहा हूँ। बाज तो ऐसे हैं जिनका नाम अब्दुल्ला अब्दुल रहमान जैद बकर उमर है, लेकिन वो जुमा की नमाज तक नहीं पढ़ते। उनको इतनी तौफीक नहीं मिलती है कि वो जुमा की नमाज को आकर के पढ़ लें। और इस सिलसिले में हमें और आपको ये मालूम होना चाहिए, इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह फरमाते हैं, वाज़ेह अल्फाज में फरमाते हैं कि जो आदमी नमाज नहीं पढ़ता, यहाँ तक कि अगर वो जुमा की नमाज नहीं पढ़ता तो ऐसा आदमी काफिर है, ऐसा आदमी मुसलमान नहीं है। इसीलिए आप देखेंगे जो लोग सऊदी अरब के अंदर गए होंगे, सऊदी अरब के लोग हम्बली होते हैं, सऊदी अरब के लोग इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह को फॉलो करते हैं। लेकिन जो सऊदी का शख्स हम्बली होता है, वो कहीं भी चला जाए, यहाँ तक कि अगर वो समंदर के किनारे है और समंदर मौज मार रहा है, मेरे भाई और दोस्तों, वो हम्बली शख्स वहां नमाज पढ़ेगा, गर्चे कसरे करे वहां नमाज पढ़ेगा। क्यों? क्योंकि उसके सामने इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह का फतवा होता है कि जो शख्स नमाज नहीं पढ़ता वो आदमी मुसलमान नहीं हो सकता, वो काफिर है। लिहाजा मेरे भाई और दोस्तों, अगर हम चाहते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के अर्श के साए तले क़यामत के दिन जगह मिले, तो हमें अपना राबता मस्जिदों से रखना होगा, अपना ताल्लुक मस्जिदों से रखना होगा, नमाजों के लिए मस्जिदों के अंदर आना होगा। अगर आएंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको अपने अर्श के साए तले जगह देगा। चौथा वो शख्स जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने अर्श के साए तले जगह देगा, प्यारे नबी फरमाते हैं, रजुलान तहाब्बा फिल्लाहि इज्तमा अलैहि व तफर्रका अलैहि, दो लोग ऐसे जिन्होंने अल्लाह रब्बुल आलमीन की रिदा के खातिर एक दूसरे से मुलाकात की हो। दो मुसलमान जो आपस में एक दूसरे से मिलते हैं, बिजनेस पर मीटिंग करने के लिए नहीं, दुनिया हासिल करने के लिए नहीं, बल्कि अल्लाह के दीन के लिए मुलाकात करते हैं, अल्लाह के दीन की नशर इशाअत के लिए मुलाकात करते हैं। अल्लाह ताला, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ऐसे दो लोगों को भी अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने अर्श के साए तले जगह देगा। जरा तसव्वुर करें, क्या हम में से कोई शख्स ऐसा है जिसने पूरी जिंदगी के अंदर कभी किसी शख्स से मुलाकात सिर्फ अल्लाह के दीन के लिए किया हो? अल्लाह और उसके रसूल के दीन की नशर इशाअत के लिए क्या हम में से किसी शख्स ने किसी से मुलाकात की है? अगर नहीं की है तो मेरे भाई और दोस्तों, करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों का इनाम यह है कि जब सूरज मखलूकात से सिर्फ 1 मील के फासले पर सूरज होगा, उस वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे लोगों को अपने अर्श के साए तले जगह देगा। इसी तरह से पांचवा शख्स जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने अर्श के साए तले जगह देगा, प्यारे नबी फरमाते हैं, रजुलुन दातहु इमरातुन ज़ातु मनसबिन व जमालिन फ़क़ाल इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह। ऐसा आदमी जिसको एक ओहदेदार, मनसब याफ्ता औरत, खूबसूरत हसीनो जमील औरत
दावत जिना दी हो और वो कह देता हो कि मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरता हूं और जिना नहीं कर सकता। अगर कोई आदमी ऐसे है कि औरत उसको बुला रही है, वो भी ऐसी औरत जो मनसब याफ्ता हो, हसीनो जमील हो, अगर उसको बुलाती है दावत जिना के लिए, उसको बुलाती है बदकारी के लिए, और वो आदमी कह देता है कि मैं अल्लाह से डरता हूं, मैं ये बेहयाई नहीं करूंगा, मैं ये जिनाकारी नहीं करूंगा, मेरे भाई और दोस्तों, ऐसे इंसान को अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने अर्श के साए तले जगह देगा। और सवाल ये है कि क्या ऐसा बच पाना मुमकिन है? बिल्कुल मुमकिन है मेरे भाई और दोस्तों। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम आपने सुना होगा। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मिस्र के बादशाह की बीवी जुलेखा ने, जुलेखा नाम के सिलसिले में अहले इल्म इख्तिलाफ करते हैं, लेकिन हम उसका नाम समझाने के वास्ते ले रहे हैं कि मिस्र के बादशाह की बीवी जुलेखा ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हजरत यूसुफ के साथ बेहयाई करने के लिए, उनके साथ फिजिकल होने के लिए 7 दरवाजों को बंद कर दिया था। 7 दरवाजे बंद, एक कमरे के अंदर ले जाती है, बहाने से फुसला करके एक कमरे के अंदर ले जाती है, बेहयाई करना चाहती है, बदकारी करना चाहती है। उस वक्त मेरे भाई और दोस्तों कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं था। जिस कमरे के अंदर वो औरत हजरत यूसुफ को ले गई थी, उस कमरे के अंदर कोई परिंदा पर नहीं मार सकता था। 7 दरवाजे बंद थे, रात की तारीकी थी, कोई नहीं कुछ कह सकता था, बादशाह की बीवी थी। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम जवान थे, मौका भी था, दस्तूर भी था, सारी चीजें अवेलेबल थी। बेहयाई करना चाहिए, बदकारी करना चाहिए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा मैं बदकारी नहीं कर सकता, मैं बेहयाई नहीं कर सकता। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम भागने लगे। अल्लाह का करम देखिए, भागे, दरवाजा ऑटोमेटिक खुल जाता है। फिर दूसरे दरवाजे के पास पहुंचते हैं, वो दरवाजा भी खुल जाता है, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, यहाँ तक कि 7 दरवाजों को अल्लाह रब्बुल आलमीन हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए खोल देता है। मालूम हुआ कि अगर दिल के अंदर अल्लाह का तकवा है, अल्लाह का डर है, अल्लाह के डर की वजह से बुराइयों को त्याग लेते हैं, मेरे भाई और दोस्तों, अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको कामयाबी के साथ में आसमान पर ले जाएगा। जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम बेहयाई से बचे तो अल्लाह ने उनको इनाम के तौर पर क्या दिया? सबसे पहली चीज जो अल्लाह ने दी, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला ने उसी मुल्क की बादशाहत अता कर दी, उसी मुल्क की बादशाहत अता कर दी जिस मुल्क के वो गुलाम थे, जिस मुल्क की जेल के अंदर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम थे। अल्लाह ने इतना करम किया हजरत यूसुफ के साथ कि अल्लाह ताला ने उसे उसी मुल्क की बादशाहत दी, और बादशाहत देने के साथ साथ एक और बहुत बड़ी नेमत दी, वो नेमत नबूवत की नेमत थी। अल्लाह ताला ने हजरत यूसुफ को नबूवत से सरफराज कर दिया। मालूम हुआ कि अगर आदमी बेहयाइयों से बचता है, बेहयाइयों की सारी चीजें अवेलेबल हैं, मौका है, दस्तूर है, सारी चीजें हैं, लेकिन अगर बेहयाई नहीं करता तो अल्लाह ताला उसको इज्जत अता करता है। अब आपके सामने अगर एक कंडीशन रखा जाए, उस कंडीशन के जरिए मेरे भाई और दोस्तों हमें और आपको अपने ईमान का जायजा लेना चाहिए। अगर बंद कमरा हो, रात की तारीखी हो, जहां किसी के आने जाने का कोई इम्कान ही ना हो, वहां एक खूबसूरत हसीनो जमील ओहदेदार औरत अगर आपको जिना की दावत देती है, कि आप उस वक्त बच सकते हैं? अगर अपने नफ्स को कंट्रोल में रख सकते हैं तो आप जान लीजिए कि आप मोमिन हैं। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि ऐसा कंडीशन और ऐसा मौका आने के बाद आप फिसल जाएंगे, तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि आपका ईमान कमजोर है, और आपको अपने ईमान की तजदीद करनी चाहिए और अपने ईमान को बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। इसी तरह से मेरे भाई और दोस्तों, जब आदमी बेहयाइयों की तरफ नहीं जाता है, बदकारियों की तरफ नहीं जाता है, तो अल्लाह ताला ऐसे इंसान को अर्श के साए तले जगह देने के साथ साथ ऐसे इंसान को अल्लाह जन्नत के अंदर भी दाखिल करेगा। अल्लाह कुरान में कहता है, वअम्मा मन खाफ़ मक़ाम रब्बिही वनहा नफ्स अनिल हवा फ़इन्नल जन्नत हियल मावा, कि जो शख्स अपने रब के सामने खड़े होने से डरा और अपने ख्वाहिशात नफ्स से बचा, अपने नफ्स की इत्तिबा नहीं की, अपने नफ्स की पैरवी नहीं की, फ़इन्नल जन्नत हियल मावा, ऐसे शख्स का ठिकाना जन्नत है।
इसी तरह से अगर आदमी बेहयाई के करीब पहुंच गया, बदकारी के करीब पहुंच जाने के बाद अल्लाह के डर से बेहयाई बदकारी को छोड़ देता है, तो ऐसा इंसान मुस्तजाबुद दावत भी है। यानी ऐसा आदमी इस दुनिया के अंदर अगर परेशानी में मुलव्विस होता है, परेशानी का शिकार होता है, तो अपने अमले सालेह का वास्ता देकर के अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करे, अल्लाह ताला उसकी दुआ को कबूल कर लेगा। इस सिलसिले में मेरे भाई और दोस्तों, बुखारी मुस्लिम की एक रिवायत आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। 3 लोग थे, कहीं जा रहे थे, अचानक बारिश होना शुरू हो गई, तूफान आ गया। ये तीनों लोग जाकर के एक गार के अंदर छुप गए। जब गार के अंदर छुपते हैं तो ऊपर से एक पत्थर गिरता है और गार का मुंह बंद हो जाता है। पूरी कोशिश करते हैं तीनों उसको हटाने के लिए, लेकिन वो अपनी कोशिश में नाकाम थे। उनको अब मालूम हो गया कि अब मौत से उनको कोई नहीं बचा सकता। उसमें से एक शख्स ने कहा, हमें और आपको चाहिए कि अल्लाह ताला से अपने आमाले सालिहा का वास्ता देकर के दुआ करें, अल्लाह हमारे दुआओं को कबूल करके हमें बचा लेगा, वरना मरने से हमें कोई नहीं रोक सकता। एक शख्स ने कहा अल्लाह ताला से अपने अमले सालेह का वास्ता देते हुए, ऐ अल्लाह, मेरे वालिदैन बूढ़े थे, एक मर्तबा में बकरी चराने दूर निकल गया, जब आया देखा मेरे माँ बाप सो गए हैं, मैं बकरियों का दूध निकाला, दूध निकालने के बाद अपने माँ बाप के सिरहाने खड़ा रहा, मेरे बच्चे बगल में भूख से तड़प रहे थे, बिलबिला रहे थे, मैंने अपने बच्चों की कोई परवाह नहीं की, अपने माँ बाप के लिए दूध का प्याला लेकर खड़ा रहा। जब वो सो करके उठे तो मैंने उनको दूध का प्याला पकड़ाया, उसके बाद अपने बच्चों को पिलाया। इस अमले सालेह का वास्ता देकर उसने कहा, अल्लाह, अगर मैंने एक काम तेरी रिजा के लिए किया है तो आए अल्लाह तू हमें बख्श दे और इस चट्टान को हटा दे। अल्लाह ने उसकी दुआ को कबूल कर लिया और चट्टान को थोड़ा सा हटा दिया। दूसरे ने कहा, अल्लाह, मैंने चंद मजदूरों से मजदूरी कराई, सबकी मजदूरी दे दी, सिवाय एक शख्स के उसकी मजदूरी को थोड़ा रोक करके रख लिया। वो आदमी नाराज होकर के चला गया। उसके बाद वो आदमी दोबारा आया तो मैंने कहा, ये बकरियां, ये ऊंट, ये गाय, भेड़, ये सारे तुम्हारे हैं, ले जाओ। वो नौकर हैरान और शशदर परेशान, भाई कल तक तो तुम मेरी पूरी मजदूरी नहीं दे रहे थे, आज तो सब कुछ मुझ पर लुटा रहे हो, क्या मामला है? उसने कहा, ले जाओ, मैंने तुम्हारी मजदूरी के जो पैसे से उसी से बिजनेस किया और इतना आगे बढ़ गया, ये सारे तुम्हारे हैं, ले जाओ। उसके बाद अल्लाह से कहा, अल्लाह, अगर मैंने ये सारा काम तेरे खातिर किया तो ऐ अल्लाह तो मुझे बख्श दे और इस चट्टान को हटा दे। मेरे भाई और दोस्तों, अल्लाह ने थोड़ा और हटा दिया, लेकिन इतनी जगह नहीं थी कि सारे के सारे उससे निकल सके। आखिरी शख्स ने कहा, अल्लाह, वो अच्छी तरह से जानता है कि मेरा इश्क मेरी चचेरी बहन के साथ था, मैं अपनी चचेरी बहन से मोहब्बत करता था और हद से ज्यादा मोहब्बत करता था। एक मर्तबा मेरी चचेरी बहन कहत साली का शिकार होती है, भुखमरी का शिकार होती है, वो मेरे पास दौड़ते हुए आती है और कहती है कि मुझे कर्जे दे दो, मेरे बच्चे भूख की वजह से बिलबिला रहे हैं, प्यास की वजह से बिलबिला रहे हैं और मुझे डर लग रहा है कहीं हमारे बच्चे भूख प्यास से मर ना जाए। उस शख्स ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें दिनारों दिरहम दे दूंगा, लेकिन एक शर्त पे, तुम अपना जिस्म मेरे हवाले कर दोगी और मुकम्मल तौर से तसर्रुफ का हक दे दोगी। वो औरत लामहाला परेशानी की वजह से, मजबूरी की वजह से तैयार हो जाती है। जब वक्त आता है फिजिकल होने का, जब वक्त आता है बदकारी करने का, मेरे भाई और दोस्तों, वो शख्स उस औरत से जैसे ही फिजिकल होने जा रहा था, उस औरत ने कहा, या अब्दुल्लाह इत्तक़िल्लाह, ऐ अल्लाह के बंदे, अल्लाह से डर और नाहक महर ना तोड़। वो आदमी बेहयाई से बच गया, बदकारी से बच गया, चला गया, उसको छोड़ दिया और जो कर्जा दिया था उसको भी माफ कर दिया। उसने अल्लाह रब्बुल आलमीन के बारगाह में इसी अमल का हवाला दिया, क्या अल्लाह, उस दिन अगर मैंने अपनी चचेरी बहन से बेहयाई नहीं किया, उसके साथ फिजिकल नहीं हुआ, तो सिर्फ और सिर्फ तेरी खातिर नहीं हुआ हो। ऐ अल्लाह, अगर तू मेरे इस अमले सालेह को कबूल कर ले तो ये चट्टान हट सकता है। अल्लाह ताला ने उसके इस अमले सालेह को कबूल किया और अल्लाह ताला ने चट्टान को हटा दिया, फिर तीनों बाहर निकल गए। जरा तसव्वुर करो मेरे भाई और दोस्तों, अमले साले का हवाला देकर बेहयाई और बदकारी से बच करके आदमी मौत से बच गया, वरना उन तीनों की मौत उसी गार के अंदर हो जाती है। अगर हम भी आज के इस दौर में, फितनों के इस दौर में,
बेहयाइयों के करीब नहीं जाते, बदकारियों के करीब नहीं जाते। और अगर कोई औरत आपको आपके माल की वजह से, आपको आपकी खूबसूरती की वजह से दावत जिना देती है और अल्लाह के डर और खौफ की वजह से आप बच जाते हैं, मेरे भाई और दोस्तों, बड़े बड़े मसाइल आपकी जिंदगी में अगर आएंगे तो अल्लाह ताला उसी नेकी की वजह से सारे मसाइल को खत्म कर देगा या मसाइल को आसान कर देगा। और आसान करने के साथ साथ कयामत के दिन जब अल्लाह रब्बुल आलमीन के साए के अलावा कोई साया नहीं होगा, तो ऐसे लोगों को अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने अर्श के साए तले जगह देगा। लिहाजा अगर अर्श, अल्लाह के अर्श के साए की आप जरूरत महसूस करते हैं तो ऐसी सूरत में बदकारियों से दूर रहें, बेहयाइयों से दूर रहें, किसी भी सूरत में बदकारियों की तरफ हरगिज न जाएं। इसी तरह से छठा शख्स जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने अर्श के साए तले जगह देगा, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, रजुलुन तसद्दक़ बिसदक़तिन फ़अख़फ़ाहा हत्ता ला तअलम शिमालुहु मा तुनफ़िक़ु यमीनुहु। क्या ऐसा आदमी जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते में सदका व खैरात करता हो, इस तौर पर कि अगर वो दाहिने हाथ से सदका कर रहा है तो बाएं हाथ को भी खबर नहीं होना चाहिए, बाएं हाथ को खबर नहीं होना चाहिए। अगर इस अंदाज से आप सदका करते हैं, ये नहीं कहा जा रहा है कि लाख रुपए, करोड़ रुपए खर्च, आप 5 रुपए खर्च अगर करते हैं मेरे भाई और दोस्तों, इस तौर पर कि बाएं हाथ को भी अगर खबर नहीं लगती है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको अपने अर्श के साए तले जगह देगा। जबकि हमारा और आपका मामला क्या है? हमारा और आपका मामला ये है कि जब हम खर्च करते हैं तो दिखा करके करते हैं, ये दिखाने के लिए कि लोग देखें कि फुला साहब ने इतना ताउन दिया, फुला साहब ने फुला की इतनी मदद की। मेरे भाई और दोस्तों, अगर हम दिखाने के वास्ते सदका करते हैं तो अल्लाह ताला हमारे सदके को कबूल नहीं करेगा, लेकिन अगर छुप करके करते हैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन क़यामत के दिन हमें और आपको अपने अर्श के साए तले जगह देगा। और आखिरी शख्स जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने अर्श के साए तले जगह देगा, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, रजुलुन ज़करल्लाह खालियन फफाज़त ऐना। ऐसा आदमी जिसने रात की तन्हाई में अल्लाह को याद किया और अल्लाह को याद करने की वजह से उसकी आंखों से आंसू बह पड़े, उसकी आंखों से आंसू बह पड़े। जरा तसव्वुर कीजिए मेरे भाई और दोस्तों, और अपनी जिंदगी का मुहासबा कीजिए, क्या कभी रात की तारीकी में या दिन की रोशनी में अल्लाह के डर से आपकी आंखों से आंसू निकले हो? अगर निकले तो बहुत अच्छी बात है, आप खुश हो जाइए, अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको अपने अर्श के साए तले जगह देगा। लेकिन अगर आपके आंखों से आंसू नहीं निकले अल्लाह के डर और खौफ की वजह से, तो मेरे भाई और दोस्तों, अपने ईमान का जायजा लेने की जरूरत है, अपने ईमान का मुहासबा करने की जरूरत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है, अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों को जन्नतुल फिरदौस में दाखिला नसीब अता फरमा। आमीन। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इबादल्लाह रहमकुमुल्लाह, इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसान व ईताइ ज़िल कुर्बा व यनहा अनिल फहशाइ वल मुनकर वल बग़य यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। उज़्कुरुल्लाह यज़्कुरुकुम वदूहु यस्तजिब लकुम व लिज़िक्रुल्लाहि तआला अअला जल्लतिन व अकबर।
صفوں کو درست کر لیں، قدم سے قدم اور کندھے سے کندھا ملا لیں، بیچ میں خالی جگہ نہ چھوڑیں، صفوں کی درستگی میں نماز کی بہتری ہے۔ اللہ اکبر۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين۔ يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين۔ اللہ اکبر۔ سمع اللہ لمن حمدہ، اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت، فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر، إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم۔ اللہ اکبر۔
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر.